Hello students, today I will discuss about the functional group. Functional group. Functional group is also known as the characteristic group. Characteristics group. Okay, CJ. हिंदी में से बोलते हैं क्रियात्मक समूह। एज ऑलरेडी स्टडीड, हाइड्रोकार्बन्स आर द parent organic compounds and all other compounds are considered to have been derived from them by replacing one or more of their hydrogen atom by some other more reactive atom or group. Okay, suppose that already you know that organic compound considered two things. First one is a alkyl or aryl group and second one is a functional group. Second one is a functional group. Now today I will discuss about the functional group. Okay, actually organic compound RH, this is the hydrocarbon. Each organic molecule consists of two parts, that is R and G. R is the denotation of, R denotes the carbon hydrogen framework. This represents the carbon hydrogen framework. It represents the carbon hydrogen framework, and G represents the functional group. G represents the functional group. Okay, and thus a functional group may be defined as an atom or a group of atoms present in a molecule which largely determine its chemical properties. Functional group determine the chemical properties, and alkyl group determine the physical property. Physical property like melting point, boiling point, density, solubility, refractive index, etc. For example, OH group that undergoes a change while the rest of the molecule, that is alkyl group, remain unchanged. It is similarly way in COH is the functional group of carboxylic acid. Okay, suppose that you have a ROH. This represents the functional group. RCOOH, this represents the functional group because hydroxyl group and COH group represent its chemical properties, and from the above discussion it follow the chemical properties of any organic compound are the properties of its functional group. In other words, all the organic compounds containing the same functional group show similar chemical reaction. For example, CH3OH, methanol, second ethanol, CH3, CH2OH, and CH3
twice CH OH etc. all produce hydrogen when treated with sodium metal. Reaction is ROH, this is the alcohol. When treated with the sodium, then it produces the sodium alkoxide. Sodium alkoxide. This is the sodium alkoxide and hydrogen gas. Okay, this is the sodium alkoxide. Sodium alkoxide. Sodium alkoxide. Okay, this is clear. Where R represent the CH3 group, that is alkyl group, CH3, CH2 group, CH3 twice CH, etc. The reason for this similar chemical behavior is that carbon-carbon hydrogen bond, carbon-carbon single bond are very strong and hence do not break easily. In contrast, the OH bond is weaker and hence reactive. Thus, we conclude that any organic compound will behave in a some manner as any other organic compound having same functional group, no matter what the rest of the molecule is. However, exceptions are known when the molecules is very large. Example, alkyl group is large or contains two or more functional group in close approximately to one another. In such case, the molecule exhibits some special properties which are typical of neither one nor of the other functional group. Okay, some of the common functional group present in various organic compound which are as follows. Functional group: SO3H. This is the sulfonic acid. This is the sulfonic acid. First, sulfonic acid. Second functional group, COOH. Okay, COOH. This is the carboxylic acid. And some acid anhydride. Like COOR, which is the ester, and second, next, COCl, that is acid chloride. Next, CONH2, which is amides. Next, CN cyanide. And CHO group is aldehyde. Next, NC group,
NC is isocyanide. It is also known as the carbylamine. Carbylamine. This is the carbylamine. Next, ketone. Ketone is represented as follows. This is the very important functional group. This is the ketone. इसको याद रख लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है. OH रिप्रेजेंट द अल्कोहल. ये मैं आपको जो नेम बता रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप का, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा. SH सो द थायो अल्कोहल. R मरकैप्टेन. ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज द मरकैप्टेन. नेक्स्ट, NH2 group. NH2 represent the amine. And next, carbon double bond. This is the alkene. And next one is carbon triple bond, which represent the alkyne. This represent the alkyne. And carbon single bond, this represent the alkane. ओके तो देखो यहाँ पे और भी होते हैं ऐसे. अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो और भी कई हो जाएंगे, जैसे आपका प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, एल्किल साइनाइड. एल्किल साइनाइड इज आल्सो नोन एज द एल्कानाइट्राइल्स एक्सेट्रा. बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे बिहेव करते हैं, तो दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप. ओके तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप बताएंगे. हमारे आज का स्टडी डीप स्टडी ही है फंक्शनल ग्रुप के बारे में. तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप. सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप. ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक बता रहा हूँ आपको. यहाँ पे मैं कई टाइप के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करूँगा. तो हमारा यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं. तो जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं आपका NO2 ग्रुप. दिस इज द नाइट्रो. नेक्स्ट X, which represent the halide. This represent the halide. And next one is a ether, ROR. ओके ROR डैश आप इसको बोल सकते हो, कंपाउंड और सिंपल ईथर. फाइनली हम यहाँ पे खाली ईथर लेते हैं. ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR. तो दिस इज द ईथर. अगला देखते हैं एल्किल ग्रुप. एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय R. And next one is a NO. NO represent the nitroso. ओके और अब देखो अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं. जो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप होता है वो है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट वन इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. ओके तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट वन इज अ
वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो नाम से ही क्लियर है, मोनोवैलेंट। देखो जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट फंक्शन क्या होता है, ओनली वन फ्री वैलेंसी फॉर एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करना कि ओनली वन फ्री वैलेंसी फॉर एल्किल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, इसके कुछ जो एग्जांपल हैं जो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप में है, OH अल्कोहल आ जाएगा, साइनाइड CN, NO2 ग्रुप, नेक्स्ट वन इज अ CHO ग्रुप, एंड नेक्स्ट COOH। तो ये सब जो होते हैं यहाँ पे एक ही फ्री वैलेंसी होती है एल्किल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट एल्किल ग्रुप जो होता है, नेक्स्ट एल्किल ग्रुप होती है हमारी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखना बच्चों, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। यहाँ पे लोग फंक्शनल ग्रुप तो बताते हैं लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं बताते, लेकिन मैं यहाँ आपको वेरियस टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप को सिखा रहा हूँ। और आप बुक में भी देखोगे कि यहाँ पे एक ही टाइप के चार्ट में समराइज़ किया होता है, लेकिन मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के टाइप को डिस्कस कर रहा हूँ। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, इसलिए आप भी बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखो जो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप में होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आप इसके बारे में बता सकते हो कि इट हैव 2 or more free valency for alkyl group, more free valency for alkyl group। ओके, तो जैसे यहाँ पे ROR ले लेते हैं, आपने इधर देखा ROR। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 वैलेंसी है, जिससे ये क्या कर रहा है, 2 एल्किल ग्रुप को होल्ड कर रहा है। तो ये क्या है, आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से आप अगला एग्जांपल ले सकते हो, RNHR। नेक्स्ट यहाँ पे RC कीटो ग्रुप ले लो, RC डबल बॉन्ड OR। तो आपने देखा यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, 2 को होल्ड करके रखा हुआ। देखो अगला जो हमारा है, अगला फंक्शनल ग्रुप, अगले फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एम्बीडेंटेड फंक्शनल ग्रुप। एम्बीडेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो जो एम्बीडेंटेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमेशा मोनोवैलेंट होते हैं। इट इज द मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट होता है। और क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव 2 ज्वाइनिंग साइट बट यूज 1 ओनली एट अ टाइम। यहाँ पे 2 जो होते हैं ज्वाइनिंग साइट होते हैं, बट एक टाइम में एक ही यूज किया जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लो, हैव 2 ज्वाइनिंग साइड but use 1 only at a time, ओके। बेटा जैसे आप यहाँ पे अगर हम ले साइनाइड को देखो,
साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केस में दिखता है। जैसे हमारे पास CN है, ओके, अगर ये CN है, इस CN में अगर हम इस CN को लें, ठीक है, CN में अगर हम देखें यहाँ पे तो कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड अप होता है तो इट प्रोड्यूस द साइनाइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? साइनाइड। अगर देखो यही अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो सिंगल बॉन्ड से तो इट प्रोड्यूस द आइसोसाइनाइड। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो CN है ये एम्बिडेंटेड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखो एट द टाइम हम एक ही यूज कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन रहा है तो इट प्रोड्यूस द साइनाइड, और अगर ये जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो इस टाइम ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? NC। दिस इज द आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो आप कहोगे सर एक ही एग्जाम्पल दिया आपने एम्बिडेंटेड फंक्शनल ग्रुप का। तो बच्चों देखो ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम नाइट्रो और नाइट्राइल के केस में, साइनेट आइसोसाइनेट के केस में देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वह है हमारा NO2 ग्रुप, ओके, NO2। तो देखो जो ये NO2 है, अगर NO2 के साथ भी हम दो कंडीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर NO के साथ आप लेते हो, अगर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो दिस इज द नाइट्रो, दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। और अगर यही जो है, अगर यहाँ पे आप देखो, अगर यहीं पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, बट एट अ टाइम वन ही यूज होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? दिस प्रोड्यूस द नाइट्राइट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्राइट प्रोड्यूस करेगा, ओके। अब इसी तरीके से CNO ग्रुप को लिख लो, CNO। तो जो CNO ग्रुप है, CNO ग्रुप के साथ भी सेम कंडीशन है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमने बनाया है यहाँ पे, पहला CNO ही बनाते हैं, CNO। जो CNO ग्रुप है ये है साइनेट, दिस इज द साइनेट, ओके। और अगला जो है NCO, ये जो होगा ये है आइसोसाइनेट, ये है आइसोसाइनेट, ओके। तो ये एम्बिडेंटेड फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से आप एक और लो, जैसे मान लो आपके पास है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के अगर दिखता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज द, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हम अटैच्ड करा दें हाइड्रोजन को, अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड होता है इस कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो फाइनली इट प्रोड्यूस द एल्डिहाइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड, विच इज द CHO। ये आपका बेटा याद रखना, CHO ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। अगर यहाँ पे आप दो एल्किल ग्रुप को ऐड कर दो, चलो मैं यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप को ऐड करता हूँ। अगर दो एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं देन इट विल प्रोड्यूस द कीटोन। क्या प्रोड्यूस करता है? ये कीटोन को प्रोड्यूस करेगा, ओके। ये हो गया आपका कीटोन। तो देखो यहाँ पे ये एम्बिडेंटेड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एम्बिडेंटेड फंक्शनल में दो बाइंडिंग साइट है, बट एट अ टाइम हम लोग एक ही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे भी एक कंडीशन और क्रिएट हो सकती है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखें जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसको हम समझते हैं ये और भी टाइप के फंक्शन ग्रुप को फॉर्म कर सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप को ही हम एक बार फिर से फर्दर डिस्कस करते हैं।
ओके। अगर देखो इस कार्बोनिल ग्रुप में कंडीशन मैं क्रिएट करता हूँ कि अगर ये इम्प्योर हो, अगर आपके पास ये इम्प्योर है, इफ इट इज इम्प्योर, देन क्या क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है? ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके एसिड क्लोराइड, एमाइड, एसिड और ईस्टर को प्रोड्यूस करता है। पहला क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट इट प्रोड्यूस द एसिड क्लोराइड, इट प्रोड्यूस द एसिड क्लोराइड। ये है आपका एसिड क्लोराइड, दिस इज द एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड है। दूसरा देखो एमाइड प्रोड्यूस करेगा, दिस इज द अमाइड। अब एसिड भी प्रोड्यूस करेगा, दिस इज द एसिड। देखा आपने, एसिड प्रोड्यूस किया। अब अगला क्या प्रोड्यूस कर सकता है? एस्टर। नेक्स्ट वन इज अ एस्टर, COR डबल बॉन्ड O। तो आपने देखा ये जो एस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप से। अब आपके दिमाग में आता होगा सर अगर ये प्योर हो तो देखो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि अगर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर प्योर हो, प्योर होने पे क्या प्रोड्यूस करेगा? ये या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। चलो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हम हाइड्रोजन और कार्बन को अटैच कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंडीशन क्रिएट करेगा, या तो बनाएगा एल्डिहाइड या तो बनाएगा आपका कीटोन। ओके, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के ही डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन जो होता है। हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग यहाँ पे फिर से फर्दर डिवाइड करें, अगर आप हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड करते हो तो जो हाइड्रोकार्बन है ये कई टाइप में डिवाइड, जैसे ओपन चेन, फर्स्ट वन इज अ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का दूसरा नाम होता है आपका एलिफैटिक, इसमें एलिफैटिक भी आते हैं, एलिफैटिक। सेकंड एसाइक्लिक, इसी में आएंगे एसाइक्लिक, या इसको आप जो है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सेकंड इसमें कौन सा आता है? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा जो है पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी नॉट एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो नाम से ही क्लियर है, ए मीन्स नॉट साइकिल, जहाँ पे साइकिल का फॉर्मेशन ना होता है। इट कंटेन कार्बन एटम बॉन्डेड टुगेदर
इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर आर ब्रांच्ड चेन। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम बॉन्डेड, कार्बन एटम जो होते हैं बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या बनाते हैं, ये बनाएगा लीनियर चेन का फॉर्मेशन करेगा, या तो ब्रांच चेन बनाएंगे, ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन करेगा। ओके। और फाइनली एसाइक्लिक जो होते हैं, एसाइक्लिक 3 टाइप के होते हैं। पहला एल्केन, एल्केन, दूसरा हो जाएगा आपका एल्कीन, और थर्ड जो होगा एल्काइन। ओके। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 हम एक एक को डिस्कस करते हैं। मेरा है पहला एल्केन। एल्केन को डिस्कस करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। इट्स जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CN H2N +2, और जहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अभी हमने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या इसका एक नाम और होता है, दिस इज आल्सो नोन एज द पैराफिन, आल्सो नोन एज द पैराफिन्स। तो पैराफिन्स का क्या नाम है, एक्चुअली जो पैराफिन है ये एक टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक स्पेशल टाइप के टर्म से मिलकर के बना हुआ है पैराफिन। तो ये पैरम वर्ड से मिलकर बना है, पैरम। पैरम का मतलब होता है अफिनिटी, पैरम मीन्स अफिनिटी, पैरम मीन्स अफिनिटी मतलब लेस अफिन्स, ये इसकी लेस अफिनिटी होती है, और इट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा कि जितने भी एल्केन हैं उस एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और या क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सिग्मा बॉन्ड। ओके। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट भी करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। ओके। कार्बन एटम में भी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लीनियर आर ब्रांच चेन। ये जो कार्बन होंगे, यहाँ पे आप जो कार्बन देख रहे हो एल्केन में, ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके लीनियर हो सकते हैं, ये लीनियर हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। ओके। अब सेकंड आता है आपका, जो सेकंड है एल्कीन। एल्कीन का दूसरा नाम होता है ऑल्फिन्स। इसको ऑल्फिन्स बोलते हैं। देखो इसको एल्केन या ऑल्फिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इन एल्कीन कार्बन कंटेन द डबल बॉन्ड, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इट जनरल फार्मूला इज CnH2n। ओके। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं,
जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इथीन ले लें, तो इथीन के का फार्मूला होगा C2H4। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं तो क्या बनाता है, H2C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एथिलीन। ओके, इसको आप क्या बोलोगे, एथिलीन। अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे आगे, एथिलीन या दिस इज द एथीन। ओके, अब नेक्स्ट इस तरीके से C3H6 ले सकते हो आप। C3H6 में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका प्रोपीन। ओके, दिस इज द प्रोपीन। अब यहाँ पे जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड्स, देन अगर मान लो एल्कीन के पास मोर देन डबल बॉन्ड हो जाए तो ओके, यहाँ पे आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट करिएगा। ये मैं आपको नोट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट पॉइंट को ध्यान समझना। ये नोट पॉइंट है हमारा। जैसे एल्कीन्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर आल्सो नोन, तो यहाँ पे आप लिखो एल्कीन्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड आर वन मोर डबल बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज एंड आल्सो नोन। कभी कभी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी देखे जाते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखे गए तो उसमें आपको क्या दिखेगा, ध्यान देना कि अगर आप वहाँ पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखते हो, जैसे एग्जांपल आपके पास है, मान लो हम यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा हमको डबल बॉन्ड दिखता है, मान लो कंडीशन है आपके पास कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 2 डबल बॉन्ड हो जाए, तो इस 2 डबल बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज द डाइन। इसको क्या बोलते हो, डाइन। अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको डाइन बोलते हो। अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज द ट्राइन। इसको ट्राइन बोलोगे। अगर आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हो, मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज द पॉलीन। इसको बोलते हैं पॉलीइन बोलते हैं। अब देखो अगला आपका आता है, अगला है हमारा एल्काइंस। तो बच्चों जो एल्काइंस होते हैं, नाम से क्लियर है, आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, और इसको एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन्स भी बोलते हैं, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्दर फिर जो है 1 बाय 1 इसको डिस्कस करके देखेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। जैसे यहाँ पे हमने अभी बताया, अभी यहाँ इसको हम समराइज कर लेते हैं। जैसे जो आपका एल्केन होता है, मैं समरी ले रहा हूँ यहाँ पे, जो एल्केन होगा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस, एल्केन का जनरल फार्मूला मैं पूछ रहा हूँ आपसे, CnH2n
प्लस 2, ओके। और जो आपका एल्काइन होगा या एल्कीन, सॉरी एल्कीन जो होगा, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। और यहाँ पे इसको हम ऑल्फिन्स भी बोल सकते हैं। और जो एल्काइन होगा, एल्काइन में क्या होगा आपका इसका जनरल फार्मूला, CnH2n -2। तो याद रखो यहाँ पे कि जब एल्केन जो होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। और अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, हियर 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, और नो पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, एल्कीन में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि एल्काइन में क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। याद रखना है, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड एंड द रेस्ट ऑल आर द पाई बॉन्ड, ओके। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे और भी होते हैं, जैसे कुछ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसको आप साइक्लोएल्केन वगैरह बोलते हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है ये है हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों देखो, जो यहाँ पे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो एलिसाइक्लिक को देखो, जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला पहले देखते हैं। इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, ओके। इट कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड। तो इसको भी आप मेंशन करिए कि इट कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम linked together by single bond। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, एग्जाम्पल हमको यहाँ पे इंक्लूड करते रहना है, और मैं भी आपको एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। अभी हम इसके लिए क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CH2 और CH2, साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन का बनाओ। साइक्लोब्यूटेन है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 कार्बन एटम होंगे, ओके। अगर इसका और भी स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हो ऐसे, यहाँ पे डायरेक्ट आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हो, और साइक्लोहेक्सेन भी हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, अगर आपने देखा है इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन तमाम बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, दिस इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला क्या बनता है हमारा, साइक्लोएल्कीन, ओके, साइक्लोएल्कीन। फर्स्ट वन जो होता है, पहला जो होता है हमारा, वो होगा साइक्लोएल्कीन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोएल्कीन में कार्बन जो होते हैं ये डबल बॉन्ड के साथ बाइंड अप होते हैं। और दूसरा क्या होगा आपका, साइक्लोएल्काइन, ये साइक्लोएल्काइन हो गया। साइक्लोएल्काइन में क्या होगा, कार्बन जो होते हैं
ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड अप होते हैं। तो इस तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ले लें साइक्लोपेंटीन। अगर हम साइक्लोपेंटीन लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप ड्रा करोगे। साइक्लोपेंटीन, यहाँ पे 5 कार्बन एटम होंगे, लेकिन याद रखना पेंटीन मैं बोल रहा हूँ, साइक्लोपेंटीन। तो जो साइक्लोपेंटीन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये जो क्या है आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे देखो साइकिल बन रहा ही नहीं, यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या है, बॉन्डेड हैं, रिंग के साथ रिंग बना रहे हैं, ओपन चेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ साइक्लोपेंटीन। ओके, अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइन भी बना सकते हो। जो साइक्लोहेक्साडाइन है उसका स्ट्रक्चर देखो, साइक्लोहेक्साडाइन का यहाँ पे साइक्लोहेक्सा है, तो यहाँ पे पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, एक कार्बन 2 3 4 5 6। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम कार्बन दिखाते हैं, कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये हमने को बनाना है साइक्लोहेक्साडाइन। तो अब यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर के लिए आप घबराइएगा नहीं, इस नॉमेनक्लेचर को हम लोग फिर से पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। इसके लिए मैं एक बेसिक रूल बताऊंगा, इसको समझना है ये क्या है। दिस इज द साइक्लोहेक्साडाइन, दिस इज द साइक्लोहेक्साडाइन, ये साइक्लोहेक्साडाइन है आपका। अच्छा, एक नोट पॉइंट देखना है यहाँ पे कि जो साइक्लो एल्काइंस होते हैं उसके पास लेस देन 7 कार्बन आइटम्स नोन पाए गए हैं अभी तक। तो इस नोट को भी आप समझ लो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नोट। नोट याद रखना कि जो साइक्लो, यहाँ पे नोट हम लिखते हैं, नोट है भाई, तो इसको स्पेशल तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल कलर के पेन से। तो देखो यहाँ पे आप लिख लेना कि साइक्लो एल्काइंस, साइक्लो alkynes having less than 7 carbon atom, 7 carbon atom are not known। इसके पास 7 कार्बन नहीं देखे गए हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे आप जनरली 6 में इसका हो जाता है, साइक्लो एल्काइन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास साइक्लोहेप्टीन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ, दिस इज द साइक्लोहेप्टाइन, ये साइक्लोहेप्टाइन है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग जो है अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।